Hey guys, this is Dr. Nimra Memon again. Hope you are all doing well. Today we'll learn about vaginal discharge. So before heading towards the topic, please like this video and subscribe Medfliss if you have not done yet. Okay, let's start. First we will discuss about the anatomy of vagina. So vagina is a muscular tube with elastic fibers and it is lined by the stratified squamous epithelium during the reproductive age under the influence of estrogen hormone. So its normal pH is 3.5 to 4.5, which is acidic, and the common flora of vagina is lactobacillus, which is most common organism. After menopause, when this estrogen concentration decreases, vaginal epithelium becomes atrophic and उसकी pH alkaline हो जाती है. That means more than 7 or 7. Lactobacillus population declines in vagina as colonized by skin flora. जो नॉर्मल हमारा फ्लोरा है वजाइना का लैक्टोबैसिलस, जो कि प्रोटेक्ट करता है बाकी ऑर्गेनिजम्स से, बाकी इन्फेक्शंस से, उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है क्योंकि ईस्ट्रोजन लेवल कम होता है और वजाइनल एपिथेलियम भी एट्रोफिक हो जाता है. सही है. और नॉर्मली जो स्किन फ्लोरा पे जो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं वो कॉलोनाइज करते हैं वजाइना को, जिसकी वजह से इट इज़ मोर प्रोन टू इन्फेक्शंस. लेट्स मूव टूवर्ड्स द फिजियोलॉजिकल डिस्चार्ज. अब हम देखेंगे कि नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज क्या होता है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं और हम उसे एबनॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज से कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. तो नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज नॉर्मली हार्मोनल लेवल्स की रिस्पॉन्स पे होता है. इट अकर्स इन रिस्पॉन्स टू हार्मोनल लेवल्स ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल्स. यूजुअली ये वाइट होता है जो कि येलो कलर में चेंज हो सकता है व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद द ऑक्सीजन. तो एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है जिसकी वजह से कभी कभी इसका कलर येलो भी हो सकता है, लाइट येलो स्टेन भी देखा जा सकता है. तो नॉर्मली देयर इज इंक्रीज्ड म्यूकस प्रोडक्शन एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन फॉलोड बाय थिकर डिस्चार्ज एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रोजेस्टेरोन हार्मोन. Discharge mainly consists of the mucus, desquamated epithelial cells, bacteria and fluid. Normally that is the composition of the physiological vaginal discharge. Now we will differentiate the healthy vaginal discharge from the abnormal vaginal discharge. In healthy vaginal discharge, it is clean or whitish in color, slight or no odor, and it can leave a yellow stain due to oxidation reaction, which I have told earlier. Changes in consistency throughout the menstrual cycle because of the influence of progesterone hormone. Abnormal vaginal discharge क्या होता है? When it changes in consistency and it appears dark yellow or green or grey in color and it resembles cottage cheese in color and consistency and you have vaginal itchiness along with all this and it looks foamy or frothy, have a strong smell of fish, yeast or another odor and is brown or blood stained. तो abnormal discharge was कि consistency change हो जाए, it becomes sticky या फिर foamy या फिर दही की तरह डिस्चार्ज नज़र आए या फिर ग्रीन कलर का, डार्क येलो कलर का और ग्रे कलर का डिस्चार्ज नज़र आए या फिर उसमें से स्ट्रॉन्ग ओडोर आए जो कि नॉर्मली नहीं होती या फिर कम होती है. तो इन सब कंप्लेंट्स के साथ यू मस्ट सी योर डॉक्टर. So classification of vaginal discharge is infectious, inflammatory and neoplastic. Infections, the most common sexually transmitted infections. It occurs due to chlamydia, trachomatis and Neisseria gonorrhoeae. Toxic shock syndrome, vulvovaginitis. एंड वल्वोवाजाइनिटिस में कौन कौन से 3 ऑर्गेनिजम्स हैं? वल्वोवाजाइनल कैंडिडियासिस, बैक्टीरियल वेजिनोसिस, ट्राइकोमोनियासिस वेजाइनलिस. Inflammatory is again divided into local and systemic. Local when chemical irritants or douching, atrophic vaginitis, foreign body, lichen planus, या systemic में Crohn's disease, collagen vascular diseases and dermatologic problem. Neoplastic में due to endometrial CA, cervical CA, vulval CA और vaginal CA.
Differential diagnosis of vaginal discharge. We will differentiate all the organisms according to their color, consistency, with test, pH, pruritus, diagnosis, and accordingly we will treat. So first of all, trichomoniasis. Trichomoniasis is greenish yellow in color. उसकी consistency thin होगी, frothy होगी, और with test will be negative. pH more than 3.5 to 4.5 जो रेंज है उससे ज़्यादा ही होगी, और उसके साथ साथ पेशेंट को इचिंग भी होगी. डायग्नोसिस में हम माइक्रोस्कोपी में देखेंगे मोटाइल ट्राइकोमोनास हमें नज़र आएंगे, और ट्रीटमेंट में हम इस पेशेंट को देंगे फ्लैजल 2 ग्राम स्टैट डोज दे सकते हैं, या फिर 200 mg TDS 7 डेज़ के लिए, 400 mg BD भी दे सकते हैं फॉर 7 डेज़. दैन कैंडिडियासिस. कैंडिडियासिस इज कर्डी वाइट डिस्चार्ज. दही की तरह का डिस्चार्ज होगा जिसकी कंसिस्टेंसी थिक होगी, और विथ टेस्ट नेगेटिव अगेन. pH कम ही होगी, लेस देन 4.5 या फिर नॉर्मल रेंज में ही होगी. प्यूराइटिस पेशेंट को माइल्ड टू मॉडरेट होगा, और हमें डायग्नोसिस पे माइक्रोस्कोपी पे हाइफे और स्पोर्स नज़र आएंगे. ट्रीटमेंट में हम देंगे पेशेंट को ओरल ट्रीटमेंट या फिर टॉपिकल ट्रीटमेंट. टॉपिकल ट्रीटमेंट में ऑइंटमेंट होती है एमिडाजोल, और ओरल ट्रीटमेंट में होता है फ्लूकोनाजोल, जो हम 150 mg ओरली देते हैं वीकली फॉर 6 वीक्स. बैक्टीरियल वेजिनोसिस. अच्छा, इसका डिस्चार्ज होगा फ्रॉम ग्रे वाइट टू ग्रीन, येलो और वाइट, तीनों कलर्स में से कुछ भी हो सकता है. अगेन इसकी कंसिस्टेंसी थिन होगी लाइक ट्राइकोमोनियासिस, और विथ टेस्ट पॉजिटिव फिशी अमाइन होगा इसमें. pH मोर देन 5. नॉन इरिटेटिंग. इसमें कोई इचिंग नहीं होगी पेशेंट को कोई इचिंग की कंप्लेन नहीं होगी. हमें डायग्नोसिस में क्लू सेल्स नज़र आएंगे माइक्रोस्कोपी पे, एंड ट्रीटमेंट इज मेट्रोनाइडाजोल 200 mg TID into 7 days. Then क्लेमाइडिया. क्लेमाइडिया का म्यूकोप्रूलेंट डिस्चार्ज होगा पस टाइप. इसकी कंसिस्टेंसी थिक होगी लाइक कैंडिडियासिस. ट्राइकोमोनियासिस और बैक्टीरियल वेजिनोसिस की कंसिस्टेंसी वॉज थिन, बट क्लेमाइडिया एंड कैंडिडियासिस की थिक होगी कंसिस्टेंसी. विथ टेस्ट नेगेटिव, pH लेस देन 4.5, जस्ट लाइक कैंडिडियासिस, दोनों की pH रेंज में होगी ऑलमोस्ट. एंड इसको हम डायग्नोज करेंगे न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट पे, और इसकी ट्रीटमेंट में 1 स्टैट डोज होता है 1 ग्राम एजिथ्रोमाइसिन. एंड नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज विच इज़ वाइट, थिन एंड नेगेटिव, एंड इट्स pH इज लेस देन 4.5 विच इज़ नॉर्मल. Now we will discuss each organism in detail. So the first one is bacterial vaginosis, which is the most common cause of vaginal discharge in childbearing age. जो रिप्रोडक्टिव एज की वुमेन होती हैं उनमें सबसे ज़्यादा कॉमन काज जो होता है वो बैक्टीरियल वेजिनोसिस होता है, जिसका प्रेवलेंस होता है फ्रॉम 5% to 50%. और ये करता क्या है? ये बेसिकली वेजाइनल pH को डिस्टर्ब करता है, और जब pH डिस्टर्ब होती है तो बहुत सारे एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे आके इन्फेक्शन कॉज करते हैं. Characterized by the overgrowth of anaerobic organisms like Gardnerella vaginalis, Pravotilla, Mycoplasma hominis, that leads to the replacement of the lactobacilli and increase in the pH from 4.5 to 7. Sign and symptoms. Patient को क्या फील होगा? Some patients are asymptomatic carriers. उनको कोई डिस्चार्ज नहीं होगा, कोई इचिंग नहीं होगी, पेशेंट को कोई कंप्लेन नहीं होगी. लेकिन कुछ पेशेंट्स को वेजाइनल डिस्चार्ज की कंप्लेन होगी, दैट इज़ फिशी मेल अडरस वेजाइनल डिस्चार्ज. सिंपली एक ही कंप्लेन भी हो सकती है, जो कि मोर प्रोमिनेंट होती है ड्यूरिंग एंड फॉलोइंग मेंस्ट्रुएशन. क्रीमी और ग्रेविश वाइट डिस्चार्ज कॉमनली एडहेरेंट टू द वॉल ऑफ वेजाइना, दैट इज़ नॉट एसोसिएटेड विथ वल्वोवेजाइनाइटिस. पेशेंट को इन्फेक्शन नहीं होगा, पेशेंट को इचिंग नहीं होगी, सिंपली मेल अडरस वेजाइनल डिस्चार्ज की कंप्लेन होगी. और जब ये इन्फेक्शन प्रेग्नेंट वुमेन को होता है तो उसमें ये कॉम्प्लिकेशंस करवाता है, जैसे कि मिसकैरेज हो सकता है, या फिर प्री प्रॉम हो सकता है, प्री टर्म बर्थ हो सकता है. प्री प्रॉम मीन्स वक्त से पहले ही पेशेंट लेबर में चली जाती है, वाटर लीक हो जाता है, वेजाइनल कफ सेल्यूलाइटिस हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, और एब्सेस फॉर्मेशन.
पस हो सकती है पेशेंट को। अब हम इसको डायग्नोस कैसे करेंगे? डायग्नोस करने के 3 क्राइटेरिया हैं, एम्सल्स क्राइटेरिया, हे आइसेंस क्राइटेरिया एंड नंजन क्राइटेरिया। तो नॉर्मली एम्सल्स क्राइटेरिया यूज़ होता है, जिसमें 3-4 चीज़ें होती हैं, थिन क्रीमी ग्रेइश वाइट डिस्चार्ज, प्रेजेंस ऑफ क्लू सेल्स, epithelial cells covered with bacteria, vaginal pH more than 4.5, and fishy odor on addition of alkali, that is the 10% potassium hydroxide. इन चारों में से कोई 3 क्राइटेरिया अगर मैच करेंगे तो विल डायग्नोज द पेशेंट एज द इन्फेक्शन ऑफ बैक्टीरियल वेजिनोसिस। ट्रीटमेंट सिंपली हम पेशेंट को बताएंगे दैट डू नॉट यूज शॉवर जेल्स एंड एंटीसेप्टिक एजेंट्स। मेट्रोनाइडाजोल 400 mg ट्वाइस डेली फॉर 5 to 7 days या फिर 2 ग्राम का स्टैट डोज देंगे हम। इंट्रावेजाइनल जेल ऑफ 0.75% कंसनट्रेशन फॉर 5 nights। क्लिंडामाइसिन क्रीम डेली यूज़ कर सकते हैं फॉर 7 days। No evidence of teratogenicity from the use of metronidazole in pregnancy. Breastfeeding women might be better treated intravaginally as metronidazole affects the taste of milk. Metronidazole की वजह से metallic taste होगा milk का। Next is vulvovaginal candidiasis, one of the most common genital infections caused by Candida albicans. So 80 to 90% of the infections are caused by albicans and 10% of the infections are caused by non-albicans. Non-albicans are Tropicalis, Glabrate, Cruce and Papillosis. Now what are the risk factors causing this infection? Pregnancy, most common. Then patient taking oral contraceptive pills, immunosuppression, broad spectrum antibiotics, if she is diabetic, or if she is using hormone replacement therapy, or if she is HIV patient. नाउ इम्यूनोसप्रेशन जो है वो एक ब्रॉड टर्म है। पेशेंट कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ले रही है, सिस्टमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ले रही है या फिर टॉपिकल, यानी वो टैबलेट फॉर्म में ले रही है या फिर वो टॉपिकल ऑइंटमेंट फॉर्म में पेशेंट कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज़ कर रही है। स्किन के थ्रू भी कॉर्टिकोस्टेरॉइड एब्जॉर्ब होता है और हमारी इम्यूनिटी को कम करता है। ऐसे पेशेंट्स जो कि डायबिटिक हैं, उनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी कम होती है तो उनको इन्फेक्शंस ज़्यादा होते हैं, बैक्टीरिया ओवरकम कर लेता है हमारी इम्यूनिटी को। या फिर पेशेंट HIV पेशेंट है, HIV पेशेंट्स की भी इम्यूनिटी कम होती है जिसकी वजह से वो मोर प्रोन होते हैं टू द इन्फेक्शंस। अब हम इसको डायग्नोज कैसे करेंगे? बाय पेरिनियल और वेजाइनल स्वॉब्स। टेस्टिंग कैन बी डन विद द ग्राम स्टेन और वेट फिल्म एंड डायरेक्ट प्लेटिंग ऑनटू द फंगल मीडिया। अब पेशेंट को साइंस एंड सिम्टम्स क्या होंगे, पेशेंट क्या फील करेगी? इचिंग, बहुत ज़्यादा पेशेंट को इचिंग की कंप्लेन होगी, सोरनेस, रैशेस होंगे, रेडनेस होगी, थिक कर्डी वेजाइनल डिस्चार्ज, डिस्पेरूनिया, डिसयूरिया, पेशेंट को यूरिन करने में बहुत तकलीफ़ होगी। जब हम पेशेंट को एग्जामिन करेंगे तो हमें वल्वल एडेमा नज़र आएगा, एक्सकोरिएशन, रेडनेस, एरिथमा, एक्सकोरिएशन मार्क, स्क्रैच मार्क्स नज़र आएंगे पेशेंट पे, रेडनेस नज़र आएगी एंड एरिथमा। पीएच नॉर्मल होगी। अब हम इस पेशेंट को ट्रीट कैसे करेंगे? 30 to 40% एसिम्टोमेटिक होते हैं कैंडिडा एल्बिकन्स ऑन स्वॉब। These women do not need any kind of treatment. C, if patient is asymptomatic, we will not treat her. अगर पेशेंट सिम्टोमेटिक होगी तो हम ट्रीटमेंट देंगे। जनरल और सपोर्टिव केयर है, अवॉइड सोप्स, परफ्यूम एंड सिंथेटिक अंडरवेयर्स। ट्रीटमेंट विल बी स्टार्टेड फ्रॉम द जर्नल केयर। वी विल गाइड द पेशेंट टू अवॉइड यूजिंग सोप्स, सिंथेटिक अंडरवेयर्स एंड परफ्यूम्स। और ट्रीटमेंट बेस्ड होगी कि हम पेशेंट को देखेंगे कि उसको किस टाइप का इन्फेक्शन है, इफ़ इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड वन और इफ़ इट इज़ अनकॉम्प्लिकेटेड वन, या फिर रिकरेंट इन्फेक्शन है, पहले भी पेशेंट को ऐसा इन्फेक्शन हो चुका है। अनकॉम्प्लिकेटेड में द फर्स्ट लाइन वुड बी इमिडाजोल्स। और इमिडाजोल्स में कौन कौन से आ जाते हैं? क्लोट्रोमाजोल, इकोनाजोल, माइकोनाजोल या फिर निस्टैटिन क्रीम। क्लोट्रोमाजोल का एक स्टैट डोज है और एक कोर्स है 5 days का, 500 mg स्टैट डोज या फिर 100 mg की 6 days यूज़ कर सकते हैं हम पैसरी। ओरल फ्लूकोनाजोल विच इज़ सिस्टमैटिक थेरेपी,
150 mg का स्टैट डोज या फिर आइट्रोकोनाजोल 200 mg ट्वाइस फॉर 1 डे। अब कॉम्प्लिकेटेड इन्फेक्शंस हमें किस में देखने को मिलेगा? डायबिटिक पेशेंट्स, प्रेगनेंसी, इम्यूनोसप्रेशन, टॉपिकल ट्रीटमेंट इन सच केसेस एक्सटेंडेड अप टू 2 वीक्स। रिकरेंट इन्फेक्शन, फर्स्ट वी विल सी कि हम रिकरेंट इन्फेक्शन बोलते किसको हैं। एटलीस्ट 4 इन्फेक्शंस विद पॉजिटिव माइक्रोस्कोपी इन एन ईयर। इन सच केसेस इंडक्शन regime होगी followed by the maintenance regime. Fluconazole 150 mg in 3 doses every 72 hourly और इसके बाद हम मेंटेनेंस डोज देंगे 150 mg वीकली फॉर 6 months। पहले 3 दिन के लिए हम 3 डोज देंगे ऑफ 150 mg, देन 150 mg हफ्ते में एक दफ़ा फॉर 6 months। और इन प्रेगनेंसी टॉपिकल इमिडाजोल देंगे फॉर 2 वीक्स इंडक्शन थेरेपी, और मेंटेनेंस के लिए क्लोट्रिमाजोल देंगे 500 mg 6 से 8 हफ्ते के लिए। नेक्स्ट इज ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस एंड द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म इज ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस विच इज़ फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन, जो कि हमें वेजाइना, यूरेथ्रा एंड पैरायूरेथ्रल ग्लैंड्स में मिलता है। इसकी ट्रांसमिशन सेक्शुअली होती है और वर्टिकल ट्रांसमिशन भी होती है, यानी कि ये 5% इन नियोनेट्स भी पाया जाता है। जिन मदर्स को इन्फेक्शन होता है उनके बच्चों में भी ये पाया जाता है। 10 to 50% पेशेंट्स को कोई सिम्टम नहीं होंगे, लेकिन बाकी पेशेंट्स को फाउल स्मेलिंग वेजाइनल डिस्चार्ज, समटाइम्स फ्रोदी येलोइश इन कलर, vulval soreness and itching, appearance of strawberry cervix due to punctate hemorrhages, dysuria, abdominal discomfort, vulvitis, vaginitis, cervicitis। पेशेंट को फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज होगा येलो कलर का, ठीक है, इचिंग होगी, और हमें पर स्पेक्युलम एग्जामिनेशन पे जब हम देखेंगे सर्विक्स को तो हमें सर्विक्स की खास अपीयरेंस मिलेगी जिसे हम स्ट्रॉबेरी सर्विक्स कहते हैं। पेशेंट को यूरिन करने में दर्द होगा, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होगा और इन्फेक्शन होगा। अब हम डायग्नोज कैसे करेंगे? डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ अ वेट स्मेयर फ्रॉम द पोस्टीरियर फॉर्निक्स विल डायग्नोज 40 to 80% of the cases. Microscopy and culture in Finberg's or Diamond's medium. ये एक मीडियम है जो कि हमें कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म को डायग्नोज करने में हेल्प करता है। अब हम पेशेंट को मैनेज कैसे करेंगे? बोथ पार्टनर्स शुड बी ट्रीटेड एंड स्क्रीन फॉर अदर सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। मेट्रोनाइडाजोल सिंगल डोज ओरल 2 ग्राम या फिर 400 mg ट्वाइस डेली फॉर 5 to 7 days। Gonorrhea. Gonorrhea is again sexually transmitted infection caused by gram-negative Diplococcus neisseria gonorrhoeae. Primary sites of infections are the urethra, endocervix, rectum, pharynx and conjunctiva. Transmission occurs as a result of direct inoculation of the secretions from mucous membrane to another, one mucous membrane to another. Vertical transmission also occurs during labor. ट्राइकोमोनास एंड गोनोरी दोनों में वर्टिकल ट्रांसमिशंस हो रही हैं। क्लिनिकल फीचर्स आर 50% पेशेंट्स एसिम्प्टोमेटिक होंगे और बाकी पेशेंट्स को मोस्ट कॉमनली इंक्रीज वेजाइनल डिस्चार्ज होगा अप टू 50%, लोअर एब्डोमिनल पेन होगा 25% लोगों में और डिसयूरिया होगा 12% लोगों में। इसके साथ साथ पेशेंट को और भी कंप्लेंट्स हो सकती हैं, जैसे कि पेशेंट हमें बताएगी कि उसको पीरियड्स में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, या फिर उसको 2 साइकिल्स के दरमियान में ब्लीडिंग होती है, या फिर उसको फेरिंजल इन्फेक्शन होगा अगर वो एसिम्प्टोमेटिक है। वर्टिकल ट्रांसमिशन की वजह से एक कंडीशन होती है जिसे कहते हैं ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम, बच्चों में होती है, जिसमें बेसिकली बच्चों को आँखों का इन्फेक्शन हो जाता है। इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं? Transluminal spread causes PID, pelvic inflammatory disease, tubal infection and subfertility. Hematogenous dissemination causes skin lesions, arthralgia, arthritis, synovitis. Diagnose कैसे होगा? Again, nucleic acid amplification test which shows higher sensitivity, more than 96% for both symptomatic and asymptomatic patients. Now, how will we manage gonorrhea? Ceftriaxone 500 mg single dose plus azithromycin single dose
which is a first line treatment. Then Cefixime 400 mg oral single dose if IM injection is contraindicated due to some conditions. Spectinomycin 2 gram IM as a single dose. In pregnancy and in breastfeeding mothers should not be treated with the quinolones and tetracyclines. Ceftriaxone 500 mg single dose with azithromycin 1 gram single oral dose, and will refer both patients to the sexually transmitted infections clinic. Genitourinary chlamydia. Chlamydia is an obligate intracellular bacterium, again the most common bacterial STI affecting both men and women. Sexually active young peoples are at highest risk. Clinical features: asymptomatic patients 80%, and some patients has postcoital and intermenstrual bleeding, purulent vaginal discharge, mucopurulent cervical discharge with contact bleeding. Complications are pelvic inflammatory disease, perihepatitis, which is Fitz-Hugh-Curtis syndrome, tubal damage leading to infertility and increased risk of ectopic pregnancies. Reiter's syndrome. Reiter's syndrome is basically the triad of three conditions: conjunctivitis, आंखों में इन्फेक्शन होगा, यूरेथ्राइटिस, आर्थराइटिस, जोड़ों की इन्फेक्शन होगा, और पेशेंट को यूरिन में इन्फेक्शन होगा. वर्टिकल ट्रांसमिशन causes ophthalmia neonatum. Laboratory test is nucleic acid amplification test, and reliable specimens are both self-taken, vulvovaginal swabs and first catch urine samples. दोनों samples से हम nucleic acid amplification test की मदद से diagnose कर सकते हैं. Well, now what is the treatment of genitourinary chlamydia? Azithromycin 1 gram stat as a single dose, or doxycycline 100 mg twice a day for 7 days. Alternative azithromycin 500 mg 4 times a day for 7 days, or erythromycin 500 mg twice a day for 14 days. Pregnancy में again quinolones and tetracyclines are contraindicated. So हम amoxicillin देंगे 500 mg 3 times a day for 7 days. Let's have a recap of the infections and their treatment options. First we'll cover the first line options, then effective substitutes, then in pregnancy what should be avoided in the first trimester. Bacterial vaginosis, metronidazole 400 mg or 500 mg twice daily for 7 days. If not, then clindamycin 300 mg orally twice day for 7 days, or metronidazole 2 gram orally as a single dose. In pregnancy, metronidazole 200 mg or 250 mg orally 3 times a day for 7 days, or we can use it as a gel 0.75% concentration twice a day for 7 days, or we can give also clindamycin. Trichomoniasis vaginalis, again metronidazole 2 grams single dose or 400 mg twice daily for 7 days. Effective substitute is, if not available, tinidazole 2 gram orally or 500 mg orally twice daily for 5 days. In pregnancy, metronidazole 200 mg or 250 mg thrice daily for 7 days, or metronidazole gel. Candida albicans, miconazole vaginal pessaries 200 mg inserted at night for 3 nights, or clotrimazole vaginal tablet 100 mg inserted at night for 7 nights. And substitute is fluconazole 150 mg orally as a single dose, or nystatin 200,000 units vaginal tablet inserted at night for 7 days. In pregnancy, miconazole 200 mg vaginal pessaries inserted once daily for 3 days, or clotrimazole vaginal tablet 100 mg inserted at night for 7 days, or again nystatin pessaries, which is 200,000 units again at night for 7 days. Then we have treatment options for cervical infections. For uncomplicated gonorrhea plus chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhea, ceftriaxone 250 mg IM single dose, or azithromycin 1 gram oral single dose. Substitute is Cefixime 400 mg oral single dose plus azithromycin 1 gram. In pregnancy, ceftriaxone 250 mg IM or azithromycin 1 gram, or Cefixime 400 mg orally single dose. Again, azithromycin 1 gram orally as a single dose.
For chlamydia trachomatis, doxycycline 100 mg orally twice for 7 days. Azithromycin 1 gram orally, erythromycin 500 mg orally QID for 7 days, or ofloxacin 200 mg to 400 mg orally twice a daily for 7 days. In pregnancy, erythromycin 500 mg 4 times a day for 7 days and azithromycin 1 gram orally. Mycoplasma genitalium, azithromycin 500 mg gram orally on day 1, 250 mg daily for day 2 to 5. And in pregnancy, azithromycin 500 gram orally on day 1 and 250 mg daily for 2 to 5 days. That's all about vaginal discharge. If you find my video useful, kindly like, share and subscribe Medquiz. Thank you for watching.